could have. I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2016 papers criminal law. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So as I always mention, paper comes like this. Paper 3 Criminal Law, Series A, 1 hour, 100 marks, 50 questions and no negative marking. So criminal law question number 1 is, which of the following statement or statements are incorrect? Criminal liability is best explained by the maxim actus non facit reum nisi mens sit rea. This is correct. For criminal liability, actus should be reus. Yes. फिर the word actus reus only includes act but not omission. No, it also includes omission. ये हो गया wrong. फिर actus reus of omission is well illustrated in R versus Horsey. No, ये wrong है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? Only 3 and 4 are incorrect. C is the answer. This is 2. In which of the following cases the court held that attempt to do even an impossible act will amount to an offense? That was R versus Goodball. B is the answer. Next is 3. Which of the following statements are correct? Mens rea means guilty knowledge of the wrongdoer. No, ये wrong है. Guilty intention, not knowledge. फिर है IPC does not negate means mens rea but requires mens rea of specific kind. ऐसे बिल्कुल ठीक है. फिर है offenses of kidnapping abduction are punishable without mens rea. Yes, even if you see bigamy, adultery, offenses like that. फिर mens rea is basic ingredient of crime. Yes, this is correct. So 2, 3 and 4 are correct. C is the answer. Next is 4. Section 61, 62 IPC dealing with absolute forfeiture of all property of the offender have been abolished by Act 16 of 1921. A is the answer. बताइए जो अबोलिश हो चुका है इतने टाइम पहले, इसका क्या रिक्वायरमेंट है इनको पूछने की? कोई पूछने वाला हो इनसे? नेक्स्ट इज 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ये. बोथ सेक्शन 34 149 itself creates specific offense. नो, रॉन्ग है. ओनली 149 specific offense is a rule of evidence. फिर है बोथ रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ vicarious liability. ये तो ठीक है. फिर है 34 fixes minimum 2 person who must share common intention, while section 149 requires there must be at least 10, no, at least 5 person to have the common object. ये भी wrong हो गया. फिर है some active participation is necessary in section 34 but section 149 does not require it. Mere member of an unlawful assembly with common object is sufficient for the liability. ये बिल्कुल ठीक है. इसमें 2 and 4 are correct, 1 and 3 are incorrect. Again, C is the answer. Next is 6. In which of the following cases the court held that when can under trial prisoner was put in the separate cell only as a precautionary measure to ensure his non-mingling with other prisoner and for his security, it did not amount to either to solitary confinement or cellular confinement. ये था Pararivalan versus IG Prison Madras. A is the answer. Next is 7. Match the following have. List 1 है, चैप्टर्स बताने हैं आईपीसी के. पहले देखिए चैप्टर 16 क्या होता है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. डी का हो गया 2. फिर आता है 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये हो गया 4. फिर आएगा 20 रिलेटिंग टू मैरिज, ये हो गया 1. फिर 21 डेफेमेशन. तो क्या बन गया इसका? 3 4 1 2. बी इज द आंसर.
एक्सरसाइज 8 अब मैच करने हैं सेक्शन। अफ्रीका का कौन सा प्रोविजन है? 159, ट्रिफल्स 95, मिसचीफ 425, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503। क्या बन गया? 4123 ए इज द आंसर। एक्सरसाइज 9 बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो केशव साहू वर्सेस सालिग्राम ये 79 पर है। फिर सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये 80 पर है। साउथवर्क लंदन बोरो काउंसिल वर्सेस विलियम ये 81 पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर। बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये नहीं है। ये किस पर है? ये है इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 85 पर। ये हो गया रॉन्ग, इसमें नोट बताना था, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10 अजर्शन एंड रीजन है। अजर्शन है देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन ऑफेंसिव रॉबरी, बिल्कुल ठीक है। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन प्रीसीड्स रॉबरी, यस बिल्कुल ठीक है। तो ए इसका आंसर रहेगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। का मेंशन किया गया सेक्शन 390 में इन रॉबरी। नेक्स्ट है 11 द पनिशमेंट फॉर द हरासमेंट ऑफ द वुमन बाय हर हस्बैंड और एनी हिज रिलेटिव विद द व्यू टू कोर्सिंग हर or any person related to her for dowry is imprisonment for a term which may extend up to 3 years. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 498A क्रूअल्टी पर। एंड क्रूअल्टी एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन 2 में। नेक्स्ट इज 12 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ डॉवरी डेथ। तो कौन सा नहीं है? तो बदरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये वाला नहीं है। सी इज द आंसर। Next 13, which of the following section of IPC punishes for causing death or resulting in persistent agitated state of victim during the commission of the offense of rape? That is section 376A. D is the answer. Next 14, Sonu Sardar versus State of Chhattisgarh is case related to the offense of Dakati. C is the answer. Next 15, any person who commits the offense of showing pornography to any woman against the will of the woman who shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years. सेक्शन कौन सा है ये? 354A, sexual harassment and punishment for that. Next 16, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सेक्शंस है। सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट देखिए अभी बताया मैंने। 354A स्टॉकिंग, 354D वॉरिज्म, 54C असोल्ट, 354B। तो क्या बन गया इसका? 3421 ए इज द आंसर। फिर से मैच करना है अब। तो ये है प्रोविजन और ये पनिशमेंट है। तो वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड कितनी पनिशमेंट है? नॉट लेस देन 5 में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। फिर है बाइंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, तो ये है कितने के बीच में एक्सटेंड? 10 ईयर्स। फिर गैंग रेप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर्स में एक्सटेंड टू लाइफ। एंड रॉबरी कमिटेड ऑन हाईवे आफ्टर सनसेट, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। तो क्या बने इसका? 2341 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 80 में बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक क्वेश्चन पर नहीं है। हरियाणा वर्सेस प्रभु ये आरपीडी पर नहीं है। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे अडल्ट्री पर है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू ये डेफेमेशन पर नहीं है। ये किस पर है? ये है इंटॉक्सिकेशन पर। बूटा सिंह किस पर है? ये है आरपीडी पर। ये प्रभु वाला केस किस पर है? ये है 325 ग्रीवियस हर्ट पर एंड 149। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19 स्टेटमेंट बतानी कौन सी इनकरेक्ट है। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बिल्कुल ठीक है। ये पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी ओनली नॉट द बॉडी ऑफ अदर, ये रॉन्ग है। ऑल्सो बॉडी ऑफ अदर आएगा, ये हो गया रॉन्ग। फिर आरपीडी सेक्शन टू कॉज डेथ इन डिफेमेशन केस, नो ये रॉन्ग हो गया। द पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस वेयर देयर इज अ टाइम टू हैव रिकोर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, नो ये भी रॉन्ग हो गया। तो 2, 3, 4 आर इनकरेक्ट। C is the answer. Next is 20 किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा, कहाँ पर मेंशन किया गया है? 364A में। D is the answer. Next 21, in which of the following case Supreme Court held that a previous section 141 of negotiable instrument
Act do not contain a condition that the prosecution of a company is sine qua non for prosecution of other person. The liability of directors or officer is vicarious and will flow from the liability of the company or the firm. कौन सा केस था ये? मोहम्मद इसाक गुलसानी वर्सेस राजामौली. D is the answer. Next 22. Court shall not take cognizance of any offence punishable under section 138 unless complaint is made within 1 month. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 142 में एंड सबसेक्शन 1 क्लॉज B. Next 23. Chapter 17 was inserted into Negotiable Instrument Act by Amendment Act in the year 1988. B is the answer. और ये पूछ लें कभी, एक्ट है ये 66 of 1988 with effect from 1st April 1989. नेक्स्ट 24. अब मैच करने हैं प्रोविजंस. तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अभी बताया, ये कौन सा सेक्शन है? 142. ए का हो गया 4. पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समैरिली, दैट इज 143. फिर डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138, ये है 140. एंड प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर 139. तो क्या बन गया? 4312. 4312 ए इज द आंसर. Next 25. A complaint against an offence under section 138 Negotiable Instrument Act must be in writing. एफिडेविट की जरूरत नहीं है, बट राइटिंग में होना चाहिए. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 26. अब लिस्ट को मैच करना है. डेफिनेशन और भी है, सेक्शन है HP एक्साइज एक्ट के, और ये डेफिनेशंस हैं एक्चुअली. तो एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहाँ पर है? ये 2G में. एक्साइज रेवेन्यू ये है I. मोलासिस Q, 2Q. व्हीकल 2ZB. तो क्या बन गया? 4321. A is the answer. Next 27. Who the following has the power to close liquor vents on the ground of riots and unlawful assembly? That is district magistrate. C is the answer. And ये एक रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले ही पूछ चुके हैं. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये सेक्शन 14 प्रोवाइजो ऑफ HP एक्साइज एक्ट. Next 28. If any license holder or any person acting on his behalf sells or delivers any liquor to any person apparently under the age of 18 years, he shall be punishable with a fine which may extend to, पेनल्टी कितनी है? 2000 से और 10,000 रुपये तक. ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा? B, 10,000 बट नॉट लेस देन 2,000. B इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? 26 ऑफ HP एक्साइज एक्ट. नेक्स्ट 29. मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेक्शंस हैं ये. तो पेनल्टी फॉर मिक्सिंग नॉक्शियस सब्सटेंसेस ये है सेक्शन 41. फिर डिस्पोजल ऑफ सीज लीकर ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ ट्रायल 65 है. पेनल्टी फॉर अनलॉफुल प्रोडक्शन ये 39 है. फिर पावर टू एंटर इंस्पेक्ट सेक्शन 8 है. तो क्या बन गया? 3142. 3142. B इज द आंसर. नेक्स्ट 30. दर्शन है द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्साइज आर वेस्टेड इन फाइनेंशियल कमिश्नर. बिल्कुल ठीक, कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 5 ऑफ HP एक्साइज एक्ट में. फिर रीज़न है फाइनेंशियल कमिश्नर हैज़ द पावर टू एस्टैब्लिश और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज, ब्रूरीज एंड वेयर हाउस एक्सेट्रा इन द स्टेट. यस, ये भी करेक्ट है. ये सेक्शन 16 ऑफ HP एक्साइज एक्ट. क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई? हाँ, हो जानी चाहिए. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ व्हीकल अंडर सेक्शन 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. याक नहीं होता. C इज द आंसर. बुल, बफलो, म्यूल ये सब होते हैं. याक किस में आता है? लाइव स्टॉक में. डेफिनेशन कहाँ है? 218A में. नेक्स्ट 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 22/9/2004. नो, ये रॉन्ग है. ये 2003 में कंस्टिट्यूट किया गया था. फिर प्राइम मिनिस्टर या चेयरपर्सन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बिल्कुल ठीक है. फिर ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल बोर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नो, ये भी गलत है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे उसमें? द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मेंबर ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. नो, ये रॉन्ग है. तो इसमें ठीक कौन सा है फिर? ओनली 2, 1, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट. C is the answer. Next 33. The provision that no wild animal shall be ordered to be killed unless the chief wildlife warden is satisfied that such animal cannot be captured, tranquilized, or translocated was inserted into section 11
of Wildlife Protection Act by Act 16 of 2003. A is the answer. 34. Which of the following statements are correct? तो area comprised within any reserve forest on the territorial water even can constitute a sanctuary. No, ये wrong है. फिर no person shall tease or molest any wild animal or litter ground of sanctuary, ये बिल्कुल ठीक है. फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन नॉट ग्रांट टू एनी पर्सन परमिशन टू एंटर इनटू सेंचुरी फॉर फोटोग्राफी, नहीं ये कर सकते हैं, ये हो गया रॉन्ग. फिर अ पर्सन कैन यूज इन सेंचुरी केमिकल एक्सप्लोसिव और एनी अदर सब्सटेंस, नो ये नहीं कर सकते. ठीक कौन सा हुआ? ओनली टू इज करेक्ट. ए इज द आंसर. 35. अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट द प्रोविजन एग्जिस्ट दैट नो पर्सन शैल टीज, मोलेस्ट or injure or feed any animal, cause disturbance to animals by noise or otherwise, or ground in a zoo. सेक्शन कौन सा है? ये है 38J. B is the answer. नेक्स्ट 36. अब ये मैच करने हैं सेक्शंस. डेफिनेशंस हैं अगेन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, कई बार कर चुके हैं पहले भी. तो कैटल की डेफिनेशन सबसे पहली है 2:1 है ना. फॉरेस्ट प्रोड्यूस आती है, उसके बाद 2:4 में फिर क्या आएगा? R आएगा, RST है ना. तो रिवर कितने में हुई? फिर 2:5 में एंड 3:2:7 में. अगर मान लो नहीं भी आता तो इसको आप कैसे करो? अल्फ़ाबेटिकली लगा लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो. तो क्या बन गया आंसर इसका? 2341. 2341. ए इज द आंसर. 37. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द गवर्नमेंट हैज पावर टू एस्टैब्लिश फॉरेस्ट कोर्ट? दैट इज सेक्शन 17. बी इज द आंसर. और ये 17 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है. 38. The DM or any magistrate first class may try summarily any forest offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months. B is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 67 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में. नेक्स्ट 39 मैच करने हैं. अब ये सेक्शंस हैं. तो पहला है द पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये है सेक्शन 39. ए का हो गया 3. फिर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी लायबल टू कन्फिस्केशन, ये है 52. फिर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर, ये 62 है. फिर पावर टू मेक रूल्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये 32 है. क्या बन गया? 3412. 3412. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 40 फिर से मैच करने हैं. अब चैप्टर्स बताने हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के. तो पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स कहाँ पर है? ये चैप्टर 9 में है. फिर ऑफ कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड, चैप्टर 5 है ये. फिर ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये है चैप्टर 4. ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये है चैप्टर 8. क्या बनेगा इसका? 3412. 3412. सी इज द आंसर. 41. In which of the following cases Supreme Court held that at a stage of framing of charge, material and document filed by the accused cannot be considered? Material produced by the prosecution alone is to be considered. Depriving the accused of the opportunity is not violative of Article 20 and 14 of the Constitution. तो ये था स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्रनाथ पहाड़ी. बी इज द आंसर. 42 मैच करने CRPC के सेक्शंस हैं ये. तो कंप्लेंट 2D में है, इन्वेस्टिगेशन 2H में है, इंक्वायरी 2G हो गया, विक्टिम 2WD हो गया. तो क्या बन गया? 2341. 2341. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 43. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पावर टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 10 years अंडर CRPC? तो असिस्टेंट सेशन जज जो है वो पास कर सकता है. सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 28 CRPC. Next 44. Under section 53 CRPC, examination of accused by medical practitioner at the request of police officer of not below the rank of sub inspector. B is the answer. Next 45. Procedure when police officer deputes his subordinate to arrest without warrant is given under section 55. B is the answer. Next 46. अब मैच करने हैं. ये देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये. तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस कहाँ पर है? ये 106 में. और लास्ट वाला जो 1010 है किसके लिए? वो हैबिचुअल पर्सन के लिए है. ठीक है ना. तो देखो क्या इससे आंसर हो गया? अगर मान लो नहीं आता तो इस तरीके से कर लो आप इसको. तो देखो 4 है और सी का है 1. तो बी इज द आंसर. आगे नहीं सही. देखो बी का क्या होगा? 109 सस्पेक्टेड वाला,
एंड कीपिंग अदर केसेस कौन सा है 107 इजी। Next 47. In which of the following cases Supreme Court held that the law does not mandate taking of prior permission for further investigation or carrying out further investigation even after filing charge sheet, it being a statutory right of police. Case था ये State of AP versus A.S. Peter. A is the answer. Next 48. Which of the following statement is not correct? The term charge is defined in section 2B CRPC. ये बिल्कुल ठीक है। The charge should be clear and specific, ये भी ठीक है। It must refer to section of IPC under which the offence charged is punishable, ये बिल्कुल ठीक है। There is no need to write the charge in the language of the court, ये गलत हो गया, तो not correct पूछा है, तो D is the answer. Next 49. Which of the following offence is triable summarily under CRPC? तो offence is not punishable with death, imprisonment for life or term exceeding 2 years, इनको कर सकते हैं summary trial, तो D इसका आंसर रहेगा। का मेंशन किया गया सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी में। नेक्स्ट 50. एंटीसिपेटरी बेल implies that the accused gives an undertaking to the police that he will be available for investigation provided he is not arrested. No, बेल है ना तो कोर्ट से मिलेगी, हो गया रॉन्ग। द डायरेक्शन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट कहाँ से देगा, ये हो गया रॉन्ग। द डायरेक्शन बाय द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट टू द पुलिस टू release on bail an accused alleged to have been committed non-cognizable offence in the event of his arrest on the terms and condition which the court consider proper in the case, बिल्कुल ठीक है। Redaction by the high court to the court of session, no, ये हो गया wrong, तो C is the answer। सेक्शन कौन सा है एंटीसिपेटरी बेल का 438 CRPC। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2016 पेपर्स क्रिमिनल लॉ। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स, काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू हेल्प द कंटेंट क्रिएटर। मींस इफ यू लाइक द वीडियोस, यू कैन जस्ट डोनेट सम मनी टू देम इन फॉर्म ऑफ टिप्स। मिनिमम स्टार्ट्स विद 20, मिनिमम इज 20 रुपीज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.